Hello to all those who are watching this video. The video is for the students of class 11th biology. See, this is the topic from the chapter number 9, biomolecules. Okay, in the previous video, I have introduced what are biomolecules and what are the main biomolecules. Okay, so Nivedita is here. And today we have selected one of the biomolecule, okay, that is carbohydrate. So we'll study about the carbohydrate. Okay, see, begin with bio micromolecule. Okay, there are bio micromolecule and bio macromolecule. So micromolecules are small, micro means small, so they are small is in size and with low molecular weight. Okay, and they are highly soluble and have simple molecular conformation. Okay, micromolecules can be inorganic such as water, mineral salts, gases, or organic compounds such as sugar, amino acids, nucleotides, etc. Okay, all these compounds mentioned above are soluble fractions of filtrate. मैंने पहले भी बताया था कि हमने फिल्ट्रेट कैसे तैयार किया था, प्रीवियस वीडियो में बताया है, और फिल्ट्रेट में हमें क्या क्या मिलेगा. So these compounds are soluble fractions of filtrate except the lipids, okay, which occur as insoluble fractions of filtrate. Okay, and they are mostly found in the cell membrane and forms vesicle. ये एक क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, ये याद रखना होगा कि they form vesicles and which are separated as an insoluble pool. Which one? Lipids. Okay, now macromolecule. So we are going to study in this video macromolecule, that is carbohydrate. Okay, so this is organic compound carbohydrate में C, H and O, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हुआ करते हैं, and they are defined as polyhydroxyaldehyde and ketones. ये अभी फॉर्मूला हम नेक्स्ट में स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड फॉर्म क्या है और कीटोन क्या है. ओके, यदि फर्क पता हो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, ये मालूम हो तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. ओके, जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड शुगर होती है और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन शुगर होती है. फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री में पढ़ा है ना. These are produced directly by the plants during photosynthesis. And carbohydrates are also known as saccharides, okay, because their major constituents are sugar. तो saccharide word को हमें आगे पढ़ते ही जाना है इसमें जितनी भी स्लाइड्स होगी. एंड यू हैव टू, whenever you think of carbohydrate, you have to keep in mind saccharides also. So monosaccharide. Okay, so we'll study about the monosaccharide. Mono means one, so these are the simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed further into simpler smaller components. ये याद रखना है कि monosaccharides को हम और नहीं तोड़ सकते सिंपलर फॉर्म में. ओके, सो जनरली इनमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो 3 to 7 होते हैं. मतलब ग्लूकोज C6 लिखते हैं हम, तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड हुआ. C6 वी राइट C6H12O6. ओके, तो इसमें कार्बन जो है वो 6 है, तो ये मोनोसैकेराइड हुआ. तो मोनोसैकेराइड एक यूनिट हुआ. ओके, so monosaccharides are also known as reducing sugars because they have a free aldehyde or ketonic group. ठीक है, and they can also reduce cupric of Benedict's or Fehling solution to cuprous ions. ये केमिस्ट्री में यू शुड नो, इसको रिड्यूसिंग कहते हैं. ओके, वो क्या कर सकते हैं, क्यूप्रिक आयंस को क्यूप्रस आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. So you can see here structures. Okay, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कैसे डिफरेंस है. दो देयर फॉर्मूला आर, ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है वो दिया है, और जो राइबोज है वो पेंटोज शुगर है, उसमें कार्बन 5 है,
तो उसको पेंटोस कहेंगे। ग्लूकोज में कार्बन 6 है तो वो हेक्सोस शुगर हुआ। ओके, यदि कार्बन 4 होगा तो टेट्रोस, ट्रायोस, इस तरीके से इनके नाम हुआ करते हैं। नाउ ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स मतलब ये मोनोसैकेराइड से बड़े हुए। सो दीज आर formed by condensation of 2 to 6 monosaccharides। ठीक है, 2 से 6 तक के मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से ये ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। द बॉन्ड बिटवीन 2 monosaccharides यूनिट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब जितने भी सैकेराइड्स यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं तो वहां बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर मोनोसैकेराइड यूनिट्स और मोनोमर्स एज फॉलोज। जैसे कि डाइसैकेराइड्स मतलब उसमें 2 यूनिट है, डाई मीन्स 2। ट्राइसैकेराइड उसमें 3 यूनिट है, किसकी? मोनोसैकेराइड की। टेट्रासैकेराइड्स मतलब कि उसमें 4 यूनिट है, जैसे मैंने बताया 5 है तो पेंटोस। ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट एज पॉलीसैकेराइड्स, वो पॉलीसैकेराइड्स है। हाँ, वो पॉली मीन्स मेनी, सैकेराइड्स बहुत सारी यूनिट है उसमें, राइट, बहुत सारी यूनिट जुड़ी हैं तो वो पॉलीसैकेराइड। मतलब 3 वर्ड्स आ गए, मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट, ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से लेकर 6 तक यूनिट होती हैं, और उससे ज़्यादा यूनिट्स हैं तो वी विल कॉल देम एज पॉलीसैकेराइड्स। सो पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ sugar containing different monosaccharides as building blocks. Okay, and these are further divides into two: homopolysaccharide and hetero. Homo and hetero, right? देखो, होमो का मतलब जिसमें जुड़ने वाली सारी सैकेराइड्स यूनिट सेम है तो होमो, और डिफरेंट है तो वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड हुआ। ओके, तो 2 कैटेगरी हुई। Now something you should know about the carbohydrate only. Starch is present as in plants as storehouse of energy. Plants जो होते हैं वो starch को store करते हैं, and it forms helical secondary structure. It can hold the I2 molecules in the helical structure. ये याद रखने वाला होगा। ऐसा क्यों है कि जब हम starch पे आयोडीन को स्प्रे करेंगे या आयोडीन को ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स भी ऐड करते हैं, तो हमें डार्क ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। क्यों मिलता है? तो उसका रीज़न यही है। क्यों टेस्ट पॉजिटिव आता है? तो दिस इज द रीज़न, बिकॉज इट कैन होल्ड द आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल स्ट्रक्चर, इसलिए उसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। एंड सेल्यूलोज मॉलिक्यूल कंटेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स joined together, so it means ये होमो हुआ क्योंकि इसमें सारे यूनिट्स ग्लूकोज के हैं। एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, ये भी याद रखना होगा। एंड ग्लाइकोजन इज एनिमल, जैसे प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट, तो एनिमल्स में बैक्टीरिया फंगस में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो रिजर्व फूड, ओके, रिजर्व फूड कौन सा होता है? So in this, glucose molecules are arranged in the highly branched bush-like chain having 2 types of linkage in a straight chain and branching pattern. Okay, so this is about the carbohydrate. ये पहले भी टेस्ट को पढ़ा होगा कि आयोडीन से हम यदि स्टार्च किसी कपड़े में भी है, हम उसमें आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे तो इट विल बिकम ब्लू ब्लैक। ओके, so thank you so much. In the next video we will study different bio molecule. Carbohydrate हो गया, then we'll study protein and many more. Thank you so much.